Hello everyone. So we will complete the rest of the configurations. ठीक है? Last time हमने GL account तक assignment कर दिया था. Now the next is what we have to create text procedure. See, this is very important. Creating the text procedure. And what do we mean by text procedure? Generally इसमें क्या होता है ना, हम जो भी condition type और हमने ट्रांजैक्शन या अकाउंट की हमने जो क्रिएट किया है ना, वो दोनों को हम इस प्रोसीजर में मेंशन करेंगे. सो इट इज मेनली ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन टाइप एंड अकाउंट की. ठीक है, कैसे क्या वो मैं दिखाती हूं अभी. So what is the transaction code? The transaction code is OBQ3. ठीक है, चलो. Now what we will do, come to OBQT slash n OBQ3. OBQ3. ठीक है, come to OBQ3, come to new entries because आपको अपना text procedure create करना है. तो come to new entries, create any text procedure. I will create ZE89 only. Z Entertainment text procedure. ठीक है. Now, once you create it, select it and come to control. Can you see here? And come to new entries. Now, ये आप देख रहे हो, ये almost इनका जो मैं आप लोगों को उतना ही दिखाऊंगी जितना एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट कर सके. ठीक है. सो कम विथ फर्स्ट, दिस इज स्टेप. स्टेप कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 1 2 3 4 5, मतलब जो भी आप दो वो सीक्वेंस में लेना होगा, या तो 10 20 30 40 जो भी है ना. तो मैं क्या करूंगी, आई विल गिव अस 100 200 300 400 500 600 एंड 700. ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया. नाउ कम टू कंडीशन टाइप. So here you have to give. Now you see here, ये जो मैंने सीक्वेंस में रखा था ना, इसका रीजन ही ये था बिकॉज इससे क्या होगा, आप इजीली इसको कॉपी करोगे एंड यू कैन. ये जो पहला है ना वो आप ब्लैंक छोड़ना एंड बाकी में पेस्ट कर देना. इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमारा जो एससीपी है ना, वो बाय डिफॉल्ट हमारा कंडीशन टाइप मेंशन किया है, which is what, which is BASB, BASB, and this is what, this is the base amount. ठीक है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे. मतलब इट इज डिफॉल्ट गिवन बाय एससीपी और जो भी कैलकुलेशन होगा वो इस बेस अमाउंट से होगा. ठीक है. फ्रॉम एंड टू, तो फ्रॉम क्या होगा, डेफिनेटली हर चीज किससे होना है, बेस अमाउंट से कैलकुलेट होना है, राइट. Everything has to be calculated from base amount. Again, what happened? Okay, again I have to write down as 200, 300, 400, 500 and sorry 600. ठीक है. So 100 will be this, 2, 3, sorry, this will be 4, right? 4, 5, here it will be 6 and here it will be 700. So everything has to be calculated from the base amount. तो सब में आप क्या करोगे, 100 100 लिख दोगे. So you have given your condition type and you have to give your account key. Can you see here account key? So यहाँ पे जो account key था मैं copy करूंगी and what I will do here, I will come here and I will paste it from the 200, right? जहां से मैंने कंडीशन टाइप दिया वहीं से मैं अकाउंट की दूंगी. क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बस इतना ही करना है एंड जस्ट प्रेस एंटर
सी ऑटोमेटिकली वो प्रीफिल्ड हो गया एंड जस्ट सेव इट। तो आपका टेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट हो गया। नाउ कभी भी आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट योर टेक्स्ट प्रोसीजर इज असाइंड टू योर कंट्री कोड। ठीक है, टेक्स्ट प्रोसीजर टू कंट्री and the transaction code is OBBJ. Now remember one thing, confuse मत होना आप कि why tax procedure has not been assigned to company code. First of all आप खुद common sense भी लगाओ, जो भी tax regime होता है, जो भी परसेंटेज है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर हम ही फॉलो करेंगे या एक पर्टिकुलर जी एंटरटेनमेंट ही फॉलो करेगा। That tax rate or tax regime will be applicable for entire country, right? पूरे इंडिया में वो सेम होगा। तो इसलिए tax procedure is never assigned to any company code. It is always assigned against a country code. ठीक है? So in case if you come across this question, कि do we need to assign tax procedure to company code? You will say no. Right, because it is not assigned, it is not relevant to any particular company. It is applicable for the entire country. So जो भी tax regime होगा वो सबके लिए same होगा. So we assign it to against a country code. And what is the transaction code? The transaction code is OBBG. तो आप कभी भी posting करोगे ना, just before posting anything against a GST, you have to check कि whether your country में आपका टैक्स प्रोसीजर असाइन तो हुआ है ना। अगर आप अपना टैक्स प्रोसीजर असाइन नहीं करोगे तो इट विल नॉट टेक इट, बिकॉज वो कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। बिकॉज हम जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी रेट मेंशन करेंगे वो हमारे टैक्स प्रोसीजर में एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? तो मतलब वो कंडीशन टाइप, वो अकाउंट टाइप सब हमारे से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक इट श्योर दैट योर कंट्री कंसिस्ट ऑफ योर टैक्स प्रोसीजर। अभी कुछ अलग है क्योंकि डेफिनेटली किसी ने भी इसको यूज किया होगा तो अपना टैक्स प्रोसीजर डाला, मैं अपना डाल देती हूँ। ठीक है, क्लियर है? फाइन। नाउ कम टू नेक्स्ट सेटिंग। द नेक्स्ट सेटिंग इज व्हाट? यू हैव टू क्रिएट ए टैक्स कोड। ठीक है, व्हाट इज टैक्स कोड? आपको पहले भी बताया गया था कि जो भी परसेंटेज होता है, वेदर इट बी एनी परसेंट, है ना, यू हैव टू क्रिएट ए टैक्स कोड्स अगेंस्ट इट। वो डिफरेंट परसेंटेज मीन्स डिफरेंट टैक्स कोड्स, राइट? तो इसका है FTXP इज द ट्रांजैक्शन कोड। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कम हियर एंड कम टू FTXP हियर। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर, गिव योर कंट्री इंडिया। ठीक है, now here you have to create your text code. Now you can create with any text code, A1, B1. Suppose I give here as A1. ठीक है, suppose A1 दे दो, A2 दे दो, आप 1 दे दो, it's all on you. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12% GST, जिसमें CGST प्लस SGST। ठीक है, because 6% CGST, 6% SGST. Here is a text type. Always remember, text code can be multiple. Text code multiple हो सकता है, depends आपके क्या क्या परसेंटेज है। पर text type हमेशा दो ही काइंड का होगा। क्या? या तो ये A होगा या ये B होगा। ठीक है, what is A and B? A is for output text, A is for output text and V is for input text। ठीक है, input text क्लियर है? तो अभी मुझे क्या करना है, यहां से अगर सेलेक्ट करना है कि वेदर ये इनपुट टेक्स्ट है या आउटपुट टेक्स्ट है, तो मैंने A1 दिया है तो A1 का A ही ले लेती हूँ एज एन आउटपुट टेक्स्ट। ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर, just press enter. Now because आपने text procedure इंडिया के against ZD89 दिया, so here can you see, here you can see your condition type and you have created your account key, वो आप यहाँ देखोगे। अगर आप
सपोज जब भी आप करोगे तो ऑलवेज चेक ओबीबीजी। अगर ओबीबीजी कोई और होता तो यहाँ पे आपका अकाउंट की और कंडीशन टाइप आपका शो नहीं होता, और फिर जब अगर शो नहीं होता तो जो भी आप परसेंटेज देते वो कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो अभी क्या है, व्हाट इज 12% सीजीएसटी? A1 है एंड इट इज एन आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 6 और 6 लिख दोगे, बिकॉज वो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, करें एंड जस्ट सेव इट। क्लियर है? वैसे ही एक हम V1 भी क्रिएट कर लेते हैं फॉर इनपुट टैक्स। ठीक है, इसमें भी हम 12% सेम लिखते हैं, बट दिस टाइम टेक्स्ट टाइप हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट टाइप इज, यू हैव ओनली टू ऑप्शन, आउटपुट और इनपुट। ठीक है, बाकी आप रेट कुछ भी ले लो, टेक्स्ट कोड कुछ भी ले लो, जस्ट प्रेस एंटर एंड दिस टाइम हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, सीजीएसटी इनपुट एंड सीजीएसटी आउटपुट, एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड कंट्रोल एस। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को एक चीज और समझाना है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या किया, आउटपुट टेक्स्ट किया, आउटपुट टेक्स्ट किया, है ना, हमने A1 लिखा, राइट, A1, और वैसे ही इनपुट टेक्स्ट है, और आई शुड राइट इन दिस वे, वैसे इनपुट टेक्स्ट है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा था उसके लिए V1, राइट, इनपुट टेक्स्ट के लिए मैंने लिखा V1। क्लियर है? अब परसेंटेज क्या है, दोनों का ही मैंने लिखा 12% और इसका भी 12%। ठीक है, अब सपोज मैं पोस्टिंग कर रही हूं आउटपुट टेक्स्ट से रिलेटेड और गलती से मैंने A1 की बजाय V1 सेलेक्ट कर लिया, आई एम जस्ट गिविंग ए सिचुएशन, तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, बट कैलकुलेशन सब किससे रिलेटेड हो जाएगा, इनपुट टेक्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा, राइट। तो ये गलती ना हो इसके लिए एसएपी हमें एक ऑप्शन देता है जहां पे हम आउटपुट टेक्स्ट के केस में वी कैन रेस्ट्रिक्ट इनपुट टेक्स्ट, एंड इनपुट टेक्स्ट के केस में वी कैन रेस्ट्रिक्ट आउटपुट टेक्स्ट। ये कैसे होगा मैं अभी दिखाती हूँ। और एक चीज, ये जो आउटपुट टेक्स्ट है मैंने बताया था आउटपुट इज रिलेटेड टू कस्टमर, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन होगा ये मैं किसमें दूंगी, सेल्स रेवेन्यू जीएल के अगेंस्ट। ठीक है, मैं सेल्स रेवेन्यू जीएल के अगेंस्ट मैं ये रेस्ट्रिक्शन दे दूंगी कि आप इनपुट टेक्स्ट को कंसीडर मत करना। इनपुट टेक्स्ट को कंसीडर मत करना मतलब क्या होता है कि सिर्फ आउटपुट टेक्स्ट को ही कंसीडर करना। ठीक है, वैसे ही इनपुट टेक्स्ट किससे रिलेटेड होता है, वेंडर से रिलेटेड। वेंडर इज रिलेटेड टू व्हाट, परचेज। तो मैं यहाँ पे परचेज जीएल में मेंशन कर दूंगी कि आप आउटपुट टेक्स्ट को मत कंसीडर करना। इससे क्या होगा, अगर मैं गलती से भी सपोज आउटपुट टेक्स्ट सेल्स से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड कुछ मैं ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रही हूँ और गलती से भी अगर मैंने V1 ले लिया तो वो मुझे एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। तो आई होप I have made it very clear कि the role of restricting input text and the role of restricting output text. ठीक है? So what is the next thing which we can do? We can come to, ये तो हो गया हमारा। Now we can come to again F is 00. ठीक है? अब आप है ना परचेज अकाउंट में कैन यू सी हियर क्रेडिट परचेज, आप किसी में भी ले लो, मतलब जो भी आपकी एंट्री है, मैं क्रेडिट परचेज ही लेते आ रही हूं, आप इसमें एडिट करो। अब परचेज के केस में क्या होगा, आपको रेस्ट्रिक्ट करना है तो यू विल कम टू टेक्स्ट कैटेगरी एंड यू विल सेलेक्ट व्हाट, परचेज में आप क्या करोगे, ओनली इनपुट टेक्स्ट अलाउड करोगे, राइट।
ओनली इनपुट टैक्स अलाउड करोगे, दैट मीन्स परचेज के केस में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने रिस्ट्रिक्शन दे दिया तो अब अगर आप गलती से भी सपोज आउटपुट टैक्स कोड लेते हो तो एससीपी आपको बताएगा, क्या बताएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू। क्लियर है? तो इसके लिए इनपुट टैक्स अलाउड है ना? इसको सेव कर लो। सेल्स टैक्स कोड हैज बीन चेंज, फाइन, नॉट एन इश्यू। हमने चेंज किया है इसलिए चेंज हुआ है, राइट। एंड लाइकवाइज आप क्या करोगे, वापस से आओ एंड सेल्स रेवेन्यू है बिकॉज कस्टमर टू सेल्स है, आप इसको भी एडिट करोगे और इसमें आप क्या एडिट करोगे, ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड। तो आउटपुट टैक्स में प्लस कर दोगे, जस्ट प्रेस एंटर। सो कैन यू सी हियर ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड। तो जब आप ये रिस्ट्रिक्शन दे देते हो एसएपी विल मेक इट श्योर कि कुछ गलती ना हो एंड जस्ट सेव इट एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड entire जो भी configuration है, this all the configurations which we have to do, this 7 configuration, definitely the last configurations you have to like what, you have to edit the purchase and sales revenue GL account, right? You have to edit it and edit किस में होगा, वही हमारा FS00 में, है ना। एंड यहाँ पे एडिटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इनपुट एंड आउटपुट जो भी टेक्स्ट अलाउड होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। सो दिस ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड in the next class now we will see practically how GST is triggered and also we will see various conditions। जैसे मैंने आप लोगों को उसमें बताया था डायरेक्ट टैक्स में, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारी कंडीशंस होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टैक्स कोड कुछ भी हो सकता है बट टैक्स टाइप विल ऑलवेज बी ईदर ए or V. A is for output text and V is for input text. ठीक है, so that's all about today's class. Thank you and have a good day.